Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Network Strategies, BS Computer Science 6th semester. Dear students, we have talked about OSI model, we have discussed switching techniques, and in previous three lectures we have talked about application layer, domain name system, simple mail transfer protocol, and hypertext transfer protocol. Now moving forward, we are coming to a transport layer. This is the all important chapter of this book, and I hope you people are studying this course in the book by Frozen. If someone is just watching lecture and not reading from the book, he is cheating. He is in mistake. He is doing something wrong because it is very difficult to understand from the lecture and from the slides. You have to study from the book if you want to understand. If you want to get insight of the course, you have to study the book by Frozen. Something more, I hope you people have studied the previous course, data communication and networks are simply introduction to networking in semester number 5th. Some terms are here which you people have discussed over there in details, and I'm just considering that you people have learned that. If I'm going into the details, what are that, then we will miss our this course. So now you people are mature, you people can understand. I am and we have very short time, therefore I'm just teaching the topics which are relevant and the topics which are related to this course, and the topics which are related to the previous course you may have studied, you may have learned. If you have not learned, go over there or pick the book and study that again. This is a very interesting course. This is a very important course. This is the course which may help in the final year project. This is the course which may help in the upcoming tests. And you people can choose this course as your field of interest or field of studies in your further studies. Okay, today we are going to start transport layer. Transport layer is basically responsible for process to process delivery, as we have discussed earlier in the OSI model. And we have already discussed that transport layer has three protocols: UDP, user datagram protocol, transmission control protocol, and the new version is the SCTP, which is not in the course, but we will try to discuss this as well. So this is chapter number 23 in the book, which I have slides of that book here. We will be discussing the process to process delivery. Before going to UDP, I want to discuss port number as well, which is required in UDP and TCP, and very important topic in this course. Okay, so coming to the lecture, first we discuss UDP. Okay, as I told earlier, and before going to UDP, we will discuss briefly about port numbers and addressing techniques. We will discuss something about process to process delivery. As I told earlier, TCP is responsible for process to process delivery. TCP is responsible for process to process delivery. What is process to process delivery? As I have told you people, we have discussed this diagram. This is a process running on the host computer. Let's suppose I have opened Facebook, and I want to make communication with this destination computer. In this host computer, if I have opened Facebook or Facebook Messenger, the message sent from here will be received to the Facebook Messenger, not on WhatsApp or IMO or Skype.
I have sent message here from Facebook Messenger. This will be received here to Facebook Messenger. This is called process to process delivery. Facebook is a process running on this computer, and Facebook is a process running on this computer. This computer may run many processes, such as this may run Facebook, this may run WhatsApp, this may run IMO, this may run Skype, and each process should have its unique identifier, its number. That number is the port number. Okay, similarly in destination there may be many processes such as Facebook, WhatsApp, IMO, or Skype, and each process must have its own identifier, and that identifier is the port number. In internet we are using three type of addresses. In data link layer, we use MAC addresses. Data link layer is responsible for node-to-node delivery. This node sends packet to this with one MAC address, source and destination. This node then send packet to this with different MAC address in source and destination. This node sends the packet to the frame to this with different source and destination MAC addresses, and similarly this node sends the frame to this node with different source and destination MAC addresses, and further this node sends the frame to this computer with different MAC addresses. This is called node to node delivery. And node to node delivery is the responsibility of data link layer, and data link layer uses MAC address. Yeah, and you people know MAC address is a 48-bit address. Okay, and it is also known as physical address, and the physical address is associated with each hardware which may not change. The second type of address is the network layer or IP address. IP address is another type of addressing. It is responsible for host to host addressing. This is node to node addressing, yeah, node to node delivery. Now host to host. IP address is responsible for host to host delivery. IP address take packet from this computer and reaches it to or take it to this computer. This is done through IP address, and IP address is host to host addressing and use an network layer. Now if my packet arrived here from this computer to this computer, but now on this computer there may be many processes. So to deliver topic to the specific process, we need another type of address, that is called port address. Port will identify the process to which the message to is delivered. So process to process delivery is basically taking message from this process and taking it to the destination and giving it to the appropriate process. This is called process to process delivery. So transport layer is responsible for process to process delivery. For process to process delivery, transport layer use port numbers. Topics in this section will be client server paradigm. We will discuss what is client server paradigm. We will discuss multiplexing and demultiplexing. We will discuss connection less versus connection oriented services, and we will also discuss reliable versus unreliable protocol. And then we will briefly start the three protocol which are UDP, TCP, and SCTP. The first, the transport is responsible for process to process delivery. It is clear to you people, and this is the data delivery of process to process, or with the help of process to process we deliver a packet from here to here. मतलब जो सोर्स कंप्यूटर पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से लेके मैंने बताया कि मैसेंजर, लेट्स सपोज फेसबुक का मैसेज जो है इधर फेसबुक पे शो होगा, स्काइप का मैसेज इधर स्काइप पे शो होगा, आईमो का मैसेज इधर आईमो पे शो होगा. तो इन मुख्तलिफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड के लिए यूज होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है क्या, पोर्ट नंबर. ओके, पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर इज बेसिकली अ 16 बिट नंबर. ये एक 16 बिट नंबर है. 16 बिट नंबर मतलब 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65,535. It consists of 65,535 numbers. These numbers are assigned by IANA. IANA stands for Internet Assigned Number Authority. It is an authority which assigns numbers to ports.
There are three categories of post. The first category is well-known ports, the second category is registered ports, and the third category is dynamic ports. Okay, so each process must have each process must have a port number. लेट्स सपोज मेरे कंप्यूटर पे जितनी भी प्रोग्राम रन होते हैं, इधर रन होता है लेट्स सपोज मेरे पास स्काइप है, मेरे पास मैं HTTP को इस ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, मैं FTP को एक्सेस कर सकता हूं, मैं फेसबुक को एक्सेस कर सकता हूं। तो हर किसी का क्या होता है, अपना एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर 16 बिट का है, 16 बिट के थ्रू हम 65,535 नंबर एक्सेस करते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, हर प्रोसेस को अपना एक वो असाइन किया जाता है नंबर। लेट्स सपोज ये मैसेज जो है स्काइप का है, ये मैसेज लेट्स सपोज फेसबुक का है, ये मैसेज लेट्स सपोज आईमो का है, तो इसको डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा, इसको डिफरेंट और इसको डिफरेंट, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज मैं कोई सर्वर है, मैं उससे टाइम लेता हूँ। पुराने जमाने में ये बहुत यूज होता था। लेट्स सपोज मेरे कंप्यूटर पे टाइम नहीं होता था, आजकल भी है हमारे कंप्यूटर पे क्या होता है, इंटरनेट से टाइम लिया जाता है। तो इंटरनेट पे मतलब एक सर्वर होगा, वो हमें कंप्यूटर को टाइम देगा। तो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, मुझे पता भी नहीं होगा, मेरा कंप्यूटर एक डे टाइम को रिक्वेस्ट करेगा। तो डे टाइम सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए मेरा क्लाइंट कंप्यूटर जो होगा वो एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इसको पता नहीं होगा कि मतलब डे टाइम सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है। तो वो डे टाइम के लिए मतलब टाइम के लिए क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा। उसको तो मतलब पता है कि सर्वर का जो वो है, क्या कहते हैं, सर्वर पे डे टाइम के लिए जो पोर्ट है वो 13 है, लेकिन क्लाइंट जो है वो क्या करता है, एक एफर्मल मतलब फर्जी सा कोई नंबर सेलेक्ट करता है पोर्ट नंबर पे, और वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को। सर्वर क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि मतलब इस यूजर को डे टाइम चाहिए, तो वो टाइम को वापस भेजता है। और वापस ही में ये क्या कहता है कि अब इस डे टाइम में क्या होता है कि वापस ही में ये बता रहा है कि पोर्ट नंबर कि मैं कौन सा सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये जो है ये सोर्स पोर्ट नंबर है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। जिस पोर्ट नंबर रिक्वेस्ट की है उस पोर्ट नंबर पे वापस एक्नॉलेजमेंट आती है और मैसेज यहाँ पर रिसीव होगा और मेरे कंप्यूटर को टाइम रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, जो पोर्ट नंबर है ये मैंने बता दिया कि ये 16 बिट्स है। 16 बिट्स जो है अच्छा, आईपी एड्रेस, आईपी वर्सेस पोर्ट नंबर का एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि आईपी कैसे काम करता है और पोर्ट नंबर कैसे काम करता है। तो आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस का काम होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में से वो अप्रोप्रिएट कंप्यूटर को सेलेक्ट करना। लेट्स सपोज मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ पेशावर में किसी बंदी को, तो सबसे पहले पेशावर में उस बंदी के कंप्यूटर को सर्च करना, ये काम है आईपी एड्रेस का। जब उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर मिल जाता है तो उस कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होंगे, तो उस कंप्यूटर में उस स्पेसिफिक प्रोसेस को, लेट्स सपोज मैंने फेसबुक पे मैसेज किया है तो फेसबुक को फाइंड करना फिर किसका काम है, पोर्ट नंबर का काम है। या लेट्स सपोज मैं यहाँ से पेशावर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे डे टाइम चाहिए, तो पेशावर में जो सर्वर पड़ा है उस सर्वर पे पोर्ट नंबर 13 है, लेकिन उस सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस का काम क्या है कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स है दुनिया में, तो दुनिया में उस स्पेसिफिक डे टाइम वाले सर्वर को फाइंड करना। तो आईपी एड्रेस क्या करेगा, उस कंप्यूटर को फाइंड करेगा। अब उस कंप्यूटर में डे टाइम सर्वर, डे टाइम वाला जो वो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मैसेज रिसीव होगी। ये काम है पोर्ट नंबर का या ट्रांसपोर्ट लेयर का। अच्छा, मैंने बात की याना की। याना क्या करता है, याना हमें पोर्ट नंबर मतलब अरेंज करता है। याना स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पोर्ट नंबर्स को असाइन करता है या मुख्तलिफ किस्म के नंबर को असाइन करता है। पोर्ट नंबर जो है ये मैंने बता दिया कि ये क्या है, 16 बिट है। 16 बिट का मतलब कि इसके थ्रू हम 65,535 टू की पावर 16 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 65,535। इसके थ्रू हम 65,536 नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो जीरो से अगर शुरू हो जाए तो ये 65,535 आता है। इसको तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स, दूसरे को कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स, और तीसरी कैटेगरी जो है ये डायनामिक
डायनामिक पोर्ट्स है। जो वेल नोन पोर्ट है ये मतलब याना जो है खुद ये असाइन भी करता है और ये इसको मैनेज भी करता है, और जितनी भी वेल नोन एप्लीकेशंस है जैसा कि डेटाइम है, जैसा कि HTTP है, जैसा कि FTP है, जैसे कि टेलनेट है, जैसे कि लेट्स सपोज कोई और ईमेल है, तो हर एक पोर्ट वेल नोन जितनी भी पोर्ट्स है हर एक को एक नंबर याना ने असाइन किया हुआ है। ठीक है, ये है 0 से 1023 तक जितने भी ये नंबर्स है ये वेल नोन पोर्ट्स को असाइन किए गए हैं। इसके बाद जो दूसरे हैं ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स है। रजिस्टर्ड जो पोर्ट्स है द पोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 1024 टू 151 आर नॉट असाइंड और कंट्रोल बाय याना। ये याना असाइन और कंट्रोल नहीं करते, दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद याना टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। याना के साथ इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, याना इसको रजिस्टर नहीं करता, हम रिक्वेस्ट करते हैं डुप्लीकेशन से बचने के लिए। लेट सपोज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए। लेट सपोज जो हमारा क्या है वो जो नेट से हम मूवीज डाउनलोड करते हैं बिट टोरेंट, तो बिट टोरेंट जो है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, लेकिन उन्होंने याना के साथ रजिस्टर किया हुआ है। वो चूंकि वेल नोन तो नहीं है, वेल नोन पोर्ट पे वो अवेलेबल नहीं है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, या लेट सपोज व्हाट्सएप लोग है, व्हाट्सएप वाले वो तो वेल नोन पोर्ट नहीं है, वो क्या करेंगे, वो पहले जाके याना के साथ अपना वो रजिस्टर करेंगे सिस्टम, याना उसको एक पोर्ट नंबर देगा। तो ये जो 1024 से 151 तक जो नंबर्स है ये याना क्या करते हैं, याना के साथ लोग रजिस्टर करवाते हैं डुप्लीकेशन से बचने के लिए। जो 49,152 से आगे है 65,535 तक ये जो पोर्ट नंबर्स है ये डायनामिक है, मतलब ये एफआरएमएल के लिए यूज होते हैं और ना इसको रजिस्टर करते हैं, ना कोई लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये जब हम लेट सपोज मेरा कोई प्रोसेस जो है वो ओपन हो रहा है, तो इस रेंज में ज्यादातर क्या करते हैं पोर्ट नंबर असाइन करते हैं। लेट सपोज मैं जब भी लेट सपोज मैं स्काइप ओपन करता हूं, तो स्काइप इमीडिएटली क्या करेगा, एक पोर्ट नंबर लेगा, इसको एफआरएमएल या डायनामिक या रैंडम पोर्ट नंबर कहते हैं। तो वो लेगा रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सर्वर पे जिस स्काइप के साथ मैं कम्युनिकेट करूंगा सर्वर पे, तो सर्वर पे इसका अपना पोर्ट नंबर होगा, कोई रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होगा। अच्छा, सॉकेट एड्रेस क्या है? सॉकेट एड्रेस तो आप लोगों को पता है कि आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को जब हम मिलाते हैं तो इसको सॉकेट एड्रेस कहते हैं। अब सॉकेट एड्रेस जो है ये क्या करता है कि जो आईपी एड्रेस है ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर को फाइंड करता है, और जो इसके साथ एसोसिएटेड पोर्ट नंबर होगा वो उस कंप्यूटर पे उस स्पेसिफिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कि आईपी क्या करता है। आईपी जो है आईपी एड्रेस वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स को डाटा भेजता है सोर्स कंप्यूटर से। अब मेरे इस कंप्यूटर पे तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस रन होते हैं। लेट सपोज मैंने ओपन किया हुआ है फेसबुक, HTTP, FTP और IMO और व्हाट्सएप, मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स। अब कभी ये पैकेट भेजिएगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फेसबुक भी ओपन किया हो, IMO भी मैं मैसेज कर रहा हूँ और व्हाट्सएप को भी, तो ये तीनों के मैसेज एट अ टाइम आते हैं। तो आईपी को तो पता नहीं होता कि कौन से के पैकेट आ रहे हैं। आईपी सिर्फ क्या करता है, मैसेज को लेता है, ये नहीं देखता कि ये किस प्रोसेस का है। आईपी उसके साथ अपना हेडर अटैच करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो उससे पहले मल्टीप्लेक्सर लगा होता है, मल्टीप्लेक्सर इसको क्या करता है, मल्टीप्लेक्स करता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के मैसेज को एक चैनल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म मैसेज आते हैं, उनको एक लाइन में कर देता है, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं सेंडर साइड पे। अब रिसीवर साइड पे क्या होता है, आईपी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पैकेट लाता है कंप्यूटर पे। लेट सपोज मेरे कंप्यूटर को लोग मैसेज करते हैं, कोई फेसबुक से करेगा, कोई ईमेल करेगा, कोई मैं मतलब सर्वर से कुछ डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, कुछ मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। तो आईपी क्या करता है, उन सारे पैकेट्स को लाता है मेरे कंप्यूटर में। अब इधर डीमल्टीप्लेक्सर लगा होता है, वो पोर्ट नंबर के बेस पे क्या करता है, आईपी जो है डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, फेसबुक का मैसेज फेसबुक को देता है, IMO का मैसेज IMO को, और YouTube का जो लेट सपोज मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ तो वो YouTube पे शो करता है, और जो मैं वेब ब्राउजर में कुछ चीजें ओपन करता हूँ तो वो मेरे वेब ब्राउजर पे शो करता है। ठीक है, तो इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अच्छा, एरर कंट्रोल।
एरर कंट्रोल क्या होता है? मतलब आप लोगों को पता है कि जब जब भी हम इंटरनेट पे कोई चीज़ें सेंड करते हैं तो मतलब इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म की नॉइज़ वगैरह आ सकते हैं, या मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये आप लोगों ने पिछले कोर्स के अंदर पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है? ईएमआई। वो मतलब जब मशीन वगैरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो हमारे मैसेज को डिस्टर्ब कर सकता है, या लेट सपोज आसमानी बिजली भी हमारे मैसेज को डिस्टर्ब कर सकता है, एरर आ सकता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इधर यहाँ पर जब हम इंटरनेट में मैसेज भेजते हैं तो उसमें एरर आ सकते हैं। तो एरर कंट्रोल क्या है कि मतलब हम देखते हैं कि अगर मैसेज में एरर हो तो हम उस मैसेज को डिस्कार्ड करते हैं या कोई मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि मैसेज को रिकवर करें। ठीक है, तो हमारे पास एरर इज चेक्ड इन दीज पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एरर चेक किया जाता है डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे एरर चेक किया जाता है, और एरर इज नॉट चेक इन दीज पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर। अब यहाँ पर जो डेटा जो है ये डेटा लिंक लेयर यहाँ पर काम नहीं करता। डेटा लिंक लेयर सिर्फ यहाँ तक मतलब डेटा लिंक लेयर पे एरर चेकिंग करता है नोड टू नोड। ठीक है, नोड टू नोड जो एरर चेकिंग होती है ये कौन करता है? ये डेटा लिंक क्लियर करता है। यह इस नोड से अगर मैसेज यहाँ तक आ जाए तो डेटा लिंक क्लियर देखता है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। फिर यहाँ से इस नोड से अगर इस नोड तक आता है तो डेटा लिंक देखता है कि इंटरनेट पे इस पे कोई एरर तो नहीं आया। और जब यहाँ से मैसेज यहाँ आता है तो डेटा लिंक क्लियर देखता है कि इस नोड से यहाँ तक डेटा में कोई एरर तो नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ नोड टू नोड देखा जाता है डेटा लिंक लेयर। इसको होस्ट टू होस्ट देखने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर होस्ट टू होस्ट एरर चेकिंग। जो हमारा नेटवर्क लेयर है ये एरर चेकिंग नहीं करता, ये ना एरर कंट्रोल करता है ना फ्लो कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? आईपी को यूज करता है होस्ट टू होस्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन होस्ट टू होस्ट एरर चेकिंग और फ्लो चेकिंग कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, क्योंकि नोड टू नोड के साथ हमारे होस्ट टू होस्ट एरर चेकिंग भी जरूरी है। अच्छा, पोजीशन ऑफ यूडीपी, टीसीपी एंड एचटीटीपी। मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे 3 प्रोटोकॉल काम करते हैं। यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो ये इसकी पोजीशन है। मतलब हमारा इस लेयर पे या मतलब एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए यूडीपी यूज होगा या टीसीपी या एचटीटीपी। कभी टीसीपी यूज होगा, कभी यूडीपी, और स्ट्रीमिंग के वक्त एचटीटीपी यूज होगा। अच्छा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी जो है ये एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। जो हमारा मेन टॉपिक है इस कोर्स इस चैप्टर का वो यूडीपी है। यूडीपी में आप लोगों को सिंपल बता दूं एक डायग्राम के जरिए कि एक हमारे पास होता है सेंडर कंप्यूटर, एक होता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर। लेट सपोज ये एक सोर्स कंप्यूटर है, ये एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। तो यूडीपी यूडीपी क्या करता है? जब लेट सपोज ये सेंडर कुछ सेंड करना चाहता है इस रिसीवर को, तो यूडीपी क्या करता है कि एक पैकेट, लेट सपोज ये जो डेटा है ये सिंपली इसको भेजते हैं। ठीक है, यूडीपी ये नहीं देखता कि मतलब वो नेटवर्क पे मौजूद है कि नहीं है, वो मतलब डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं है। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोटोकॉल है यूडीपी। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी सिंपलिसिटी के साथ वो कहते हैं ना कि सिंपलिसिटी ब्रिंग्स एडवांटेजेस, इस तरह का कुछ कोटेशन है कि मतलब सिंपलिसिटी के साथ बहुत कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। दूसरा मतलब जितना सिंपल है इतना ये फास्ट भी है, सिंपल है और फास्ट है। फास्ट मतलब ये मतलब नेटवर्क पे ओवरहेड भी क्रिएट नहीं करता। मतलब जब हम आगे टीसीपी पढ़ेंगे, टीसीपी में सबसे पहले क्या होता है? कनेक्शन बनाया जाता है। कनेक्शन मतलब कि पहले देखा जाता है कि वो यूजर अवेलेबल है कि नहीं है। जब वो अवेलेबल होता है तो उसको रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। फिर उसके रिस्पांस के लिए वेट किया जाता है। जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो ये फिर उसके साथ कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता। यूडीपी में ये होता है कि यूजर है ये अगर डेस्टिनेशन को कुछ भेजना चाहता है तो ये सिंपली उसको भेज देते हैं।
ये नहीं देखता कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो इसको रिसीव करेगा कि नहीं करेगा, और ये इसको कब रिसीव करेगा, ये चीजें यूडीपी नहीं देखता। तो सेंडर डेटा सेंड करता है और उसको फिर पता नहीं चलता कि मेरा डेटा उसको रिसीव हुआ कि नहीं। इसका एग्जांपल ये है कि लेट सपोज वसीम है, वो बिलाल को मैसेज करता है। तो बिलाल को तो मतलब वसीम मैसेज भेज देता है, लेकिन वसीम को ये नहीं पता चलता कि बिलाल को मेरा मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, बिलाल ने मैसेज रीड किया कि नहीं किया। व्हाट्सएप और आईमो की बात नहीं कर रहा मैं, उधर पे डिलीवरी ऑप्शन है। लेकिन सिंपल मोबाइल पे पहले जमाने में क्या होता था, पहले एक डिलीवरी रिपोर्ट हमें आता था, लेकिन आजकल वो डिलीवरी रिपोर्ट भी मतलब हम लोगों ने ऑफ किए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि मतलब मेरा मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह यूडीपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो काम करता है, ये भी क्या करता है, ये सिंपली मैसेज को सेंड करता है। इस पे ना फ्लो कंट्रोल है ना एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल में सिर्फ चेकसम है। चेकसम मतलब ये देखता है कि अगर लेट सपोज यहाँ से मैसेज भेजा गया और ये मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ, तो यूडीपी क्या करता है, इसको चेक करता है कि इस पे एरर तो नहीं आया। अगर एरर आया है तो इस मैसेज को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। इसको ये भी नहीं बताता कि मतलब आप मुझे ये रीसेंड करे या ये करे या वो करे, कुछ भी नहीं बताता, सिंपली इस मैसेज को डिस्कार्ड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है वो बल्क डेटा के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, और स्पीड इसका ज्यादा है। ठीक, ये कनेक्शन लेस है, मतलब मैंने बताया कि ये कनेक्शन नहीं बनाता। और अनरिलायबल है, अनरिलायबल मतलब इसमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल इतना, मतलब इसमें फ्लो कंट्रोल तो है नहीं, और एरर कंट्रोल भी बिल्कुल छोटा सा है। इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विस ऑफ आईपी। ये आईपी यूज करता है, आईपी को कुछ भी चीजें ऐड नहीं करता, सिंपल ये ऐड करता है कि आपने किस होस्ट को ये पैकेट डिलीवर करना है। सिर्फ होस्ट टू होस्ट फैसिलिटी के अलावा ये आईपी को कुछ भी ऐड नहीं करता। अच्छा, जो यूडीपी जो है ये कुछ वेल नोन पोर्ट्स को यूज करता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वो पोर्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स को यूज करता है, यूजर डेटाग्राम क्या है, चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है, यूडीपी ऑपरेशन कौन से है, और यूज ऑफ यूडीपी हम देखेंगे। आप लोगों ने मतलब बुक से इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर मैंने मिड टर्म लिया, मतलब मिड टर्म में मैं टीसीपी और यूडीपी में से एक को लाजमी डालूंगा। अच्छा, जो वेल नोन पोर्ट्स है उसमें एक है पोर्ट नंबर 7 यूज करता है इक्यू के लिए। इक्यू रिसीव डेटाग्राम बैक टू द सेंडर, मतलब जब डेटाग्राम रिसीव होता है सेंडर को तो वो इक्यू मैसेज इसको आता है। ठीक है, 9 नंबर जो है ये पोर्ट यूज होता है डिस्कार्ड के लिए, डिस्कार्ड एनी डेटाग्राम दैट इज रिसीव्ड। ठीक है, अगर एक डेटाग्राम मुझे पहले से रिसीव हुआ है तो उसको दोबारा जब आ जाए तो मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ। पोर्ट नंबर 11 यूज होता है यूजर के लिए, एक्टिव यूजर्स के लिए। 13 जो है वो डे टाइम सर्वर है। मैंने बता दिया कि डे टाइम सर्वर जो है वो सर्वर पे एक एप्लीकेशन चलती है। वो एप्लीकेशन क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करता है, डे टाइम। मतलब आज मेरे सिस्टम पे अगर टाइम नहीं है तो मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे डे टाइम क्या करो, शो करो। अच्छा, पोर्ट नंबर 17 कोटेशंस के लिए है। पोर्ट नंबर 19 चार्जन रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब जब क्लाइंट को कोई स्ट्रिंग चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स वगैरह, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है पोर्ट नंबर 19 पे। पोर्ट नंबर 53 जो है वो नेम सर्वर है, कि मतलब अगर मुझे डोमेन नेम चाहिए, सर्वर का डोमेन नेम सर्विस चाहिए, तो मैं इस को यूज कर सकता हूँ। पोर्ट नंबर 7 जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता है, ये सर्वर पोर्ट है। और 68 जो है ये क्लाइंट पोर्ट टू डाउनलोड बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन है। पोर्ट नंबर 69 जो है ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए है। पोर्ट नंबर 111 जो है ये आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, जब हम किसी रिमोट सिस्टम पे किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं, लेट सपोज एक कंप्यूटर पेशावर में पड़ी है और मैं उसमें कोई फंक्शन कॉल करता हूं, तो मैं पोर्ट नंबर 111 यूज करूंगा। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है इसके लिए 123 है। 161 सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए है, और 162 भी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए है। इधर एक एग्जांपल रन करते हैं। ये लोग के मतलब लिनक्स पे हम कैसे देखते हैं कि टीसीपी कौन सा पोर्ट यूज करते हैं और एफटीपी। तो ये लोग कहते हैं कि लिनक्स पे एक डायरेक्टरी होती है एटीसी के नाम से, और इस डायरेक्टरी में सर्विसेज होते हैं और उसके पोर्ट नंबर होते हैं। तो ये कहते हैं कि एफटीपी जो है वो पोर्ट नंबर 21 यूज करते हैं टीसीपी, और एफटीपी के लिए पोर्ट नंबर 21 यूडीपी पे भी यूज होता है।
अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं कि SNMP जो है ये 2 पोर्ट यूज करते हैं। SNMP 161 और 162 जो है ये TCP और UDP के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लिनक्स में ये एक एग्जांपल है। अच्छा, हम हेडर की बात कर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हर दिन मतलब हम हर चीज की हेडर पढ़ते हैं, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी। लेक्चर नंबर 1 या 2 था मेरे ख्याल में, हमने OSI मॉडल को जब डिस्कस किया था तो उधर हमने एक बात की थी हेडर की। हमने कहा था कि प्ला लेयर अपना हेडर ऐड करता है, प्ला लेयर अपना हेडर ऐड करता है। तो वो बात जब हमने की थी, वो लेट्स मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 2 में है। अच्छा, एक मिनट में इसको फाइंड करने की कोशिश कर। अच्छा, इधर मैंने बात की थी कि मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होता है, तो एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर अटैच करता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर की बात मैंने की थी, तो प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर अटैच करता है। फिर आगे मैंने बात की थी सेशन लेयर, तो मैंने कहा था कि सेशन लेयर अपना हेडर अटैच करता है। और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आज मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 प्रोटोकॉल है, TCP, SCTP और UDP। तो इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल अपना हेडर अटैच करेगा। तो अब इस मतलब ये जो मैं कहता हूं इधर, परसों मैंने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर के, पिछले लेक्चर की नहीं, उसके पहले मैंने बात की थी मतलब फ्रेम रिले पे ये हेडर अटैच होता है, ATM पे ये हेडर अटैच होता है। उससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने बात की थी कि ये हेडर अटैच होता है, उस हेडर में ये होता है। अच्छा, FTP मैंने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। HTTP मैंने कहा था HTTP का हेडर होता है, HTTP के हेडर में ये होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि HTTP क्या है। HTTP या SNMP ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, और ये जो हेडर अटैच करते हैं उस हेडर में ये होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो UDP होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो जो अपने हेडर अटैच करते हैं उस हेडर में क्या होता है। ठीक है, तो उस हेडर में होता है, वो जो हेडर है, लेट सपोज जब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जब मैसेज आता है उस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP में जो डेटा आता है वो सारा का सारा डेटा UDP उसमें अपना हेडर अटैच करते हैं। उस वो हेडर जो है वो 8 बाइट्स का होता है। उस हेडर पे क्या होता है, 16 बिट्स जो है उस पे सोर्स पोर्ट नंबर होता है, मतलब कौन सा पोर्ट नंबर जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। 16 बिट्स उसमें होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की, मतलब ये जो मैसेज जाएगा वो डेस्टिनेशन पे कौन से पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, और इसमें 16 बिट्स जो है वो टोटल लेंथ है, कि मतलब इस मैसेज का टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ दिस डेटा। ठीक है, और 16 बिट जो है ये चेकसम के लिए। चेकसम क्या है? चेकसम मतलब अगर मैसेज में रास्ते में कोई एरर आ जाए तो डेस्टिनेशन पे चेकसम के थ्रू उसको चेक किया जाता है कि कोई एरर आया तो नहीं। अगर एरर आया है तो उसको सिंपली डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, UDP लेंथ, ये कहते हैं कि UDP लेंथ यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी। हम क्या कर सकते हैं कि हेडर में से अगर अच्छा, आईपी पर अगर हम क्या करते हैं, आईपी लेंथ को हम आईपी हेडर से आईपी लेंथ मतलब आईपी में जो जो पूरा आईपी लेंथ होता है, पैकेट का पूरा लेंथ होता है, उसमें आईपी के हेडर को माइनस करें तो हम UDP लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब UDP लेंथ डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आसानी के लिए जो UDP का डेवलपर है उसने डाला हुआ है। ठीक है, सूडो हेडर फॉर चेकसम, जो सूडो हेडर होता है चेकसम के लिए, मतलब इसमें मतलब चेकसम को क्यों डाला हुआ है, तो चेकसम को इसलिए डाला हुआ है ताकि मतलब एरर को डेस्टिनेशन पे चेक किया जा सके। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपका डेटा जो है वो मतलब कुछ खास लेंथ से कम हो तो आप जीरोस को अटैच करते हैं ताकि डेटा का साइज पूरा हो। जो इधर है ये हमारा 32 बिट आईपी एड्रेस है, 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और ऑल जीरोस 8 बिट प्रोटोकॉल है हमारा, और 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ है।
इधर शो द चेकसम कैलकुलेशन, तो ये चेकसम को कैलकुलेट करता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पिछले कोर्स के अंदर किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट है उसमें कीविंग है। कीव क्या है? कीविंग क्या होता है? लेट सपोज मैं जब कोई भी एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर स्काइप ओपन करता हूँ, तो अब मेरी मेरी स्काइप जो है वो कंप्यूटर पे बंद है, तो मेरा कंप्यूटर स्काइप को यूज नहीं कर रहा, तो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। जब मैं स्काइप को यहाँ क्लिक करता हूँ और स्काइप ओपन होता है, तो सबसे पहले जो है ये कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक पोर्ट नंबर दो। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको फर्जी एफर्मल एक पोर्ट नंबर देता है। एफर्मल पोर्ट नंबर देने के बाद मेरे कंप्यूटर की मेमोरी पे क्या हो जाता है, एक क्यू बन जाती है स्काइप के लिए। अभी तक मेरे कंप्यूटर पे स्काइप के लिए क्यू नहीं थी, अब मेरे कंप्यूटर पे स्काइप के लिए दो क्यूज बन गए। जो जो पोर्ट नंबर, जो एफर्मल पोर्ट नंबर कंप्यूटर असाइन करेगा, तो उस एफर्मल पोर्ट नंबर पे, मतलब उस फर्जी पोर्ट नंबर पे, लेट सपोज 52,000, ये एक नंबर लेट सपोज मेरे स्काइप को असाइन हो गया, तो उस स्काइप पे दो क्यूज बन गए। एक क्यू जो है स्काइप के आउटगोइंग मैसेज के लिए, और एक क्यू जो है वो स्काइप के इनकमिंग मैसेज के लिए। मैं क्या कर सकता हूं, अब जब मैंने स्काइप ओपन किया तो मैं स्काइप से मैसेजेस भेज सकता हूं। तो जो मैसेजेस मैं भेजूंगा तो वो आउटगोइंग क्यू में जाएंगे, मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, रैम में जो क्यू बन गई। आप लोगों ने क्यू तो जानते हो ना, डाटा स्ट्रक्चर है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में क्यू पढ़ा होगा। क्यू क्या है? कतार है। वो डेटा को कतार में, सपोज मेरा स्काइप जो है वो एक सेकंड में 50 मैसेजेस भेजता है, तो वो सारे मैसेजेस क्या होंगे, कतार में पड़े होंगे, और एक आउटगोइंग क्यू में। और जो लेट सपोज मैं 50 मैसेज तो एक सेकंड में नहीं भेज सकता, लेकिन 500 लोग अगर बैठे हो तो वो एक सेकंड में मुझे 500 मैसेजेस कर सकते हैं। तो जो मैसेजेस मेरे क्यू में आएंगे तो वो इनकमिंग क्यू में आएंगे। ठीक है, तो ये लेट सपोज क्लाइंट पे है, तो जो आउटगोइंग मैसेजेस है वो इसमें पड़े होंगे। यूडीपी इसको क्यू में डालेगा, यूडीपी क्यू में। इससे क्या होगा, ये मैसेज फिर एक एक करके आईपी को डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, और जो सर्वर पे जो पोर्ट नंबर है, इधर सोर्स और डेस्टिनेशन, क्लाइंट और सर्वर में ये फर्क है। फर्क है कि क्लाइंट पे क्या होता है, एफर्मल पोर्ट नंबर पे क्यू बनाए जाते हैं, लेकिन सर्वर पे वेल नोन पोर्ट पे क्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग क्यूज तो होंगे, लेकिन क्लाइंट पे जो है ये एफर्मल या फर्जी फर्जी पोर्ट नंबर यूज किया जाएगा। लेकिन जो सर्वर है, सर्वर पे तो पोर्ट नंबर्स का पता होता है कि स्काइप का कौन सा पोर्ट नंबर है, एचटीटीपी का कौन सा है, एफटीपी का कौन सा है। तो हर पोर्ट नंबर के लिए जो भी ओपन हो उसके लिए उस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे क्यूज बनाए जाते हैं। अब जब मुझे लेट सपोज इस कंप्यूटर पे मेरे मेरे इस कंप्यूटर पे लेट सपोज एक मैसेज आता है, किसी कोई और कंप्यूटर मुझे वो मैसेज भेज देता है, तो पहले देखा जाता है कि इसके लिए क्यू ओपन है कि नहीं। लेट सपोज मेरे कंप्यूटर पे क्यू ओपन नहीं है, तो मैं मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। तो क्या होता है, मैसेज आता है मेरे कंप्यूटर पे, क्यों, चूंकि मेरा वो ओपन नहीं है स्काइप, तो इसके लिए इनकमिंग क्यू नहीं होगी, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैसेज को डिस्कार्ड करता है। अगर मेरा स्काइप ओपन हो तो मेरी इनकमिंग क्यू होगी, तो जब मुझे कोई मैसेज करेगा तो मेरे इनकमिंग क्यू में मैसेज आएगा। इनकमिंग क्यू में मैसेज आने के बाद यूडीपी क्या करेगा, यूडीपी या टीसीपी वो मैसेज मेरे प्रोसेस को डिलीवर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस की। इसके बाद जो मतलब बुक में कुछ चीज़ें हैं, मल्टीप्लेक्सिंग हमने डिस्कस की, सॉकेट एड्रेस, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो कनेक्शन लेस दो प्रोटोकॉल्स है, एक को कहते हैं कनेक्शन लेस, एक को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस कनेक्शन लेस सर्विस जो है ये है कि ये कनेक्शन, सॉरी इधर मैंने कुछ गलती की है, लेकिन आप लोगों को समझ के लिए ठीक है। ठीक है, ये कनेक्शन है। ठीक है, ये मैंने कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये है कनेक्शन। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल सर्विस जो है ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन नहीं बनाता। हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, एक है यूडीपी और एक है टीसीपी।
तो जो हमारा यूडीपी है ये कनेक्शन नहीं बनाता। मतलब जब इसने इस सेंडर ने इसको डेटा सेंड करना होता है तो ये कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। तो ये कनेक्शन लेस सर्विस है। अब अगर टीसीपी हो तो टीसीपी पहले क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। टीसीपी जो है, टीसीपी को हम कहते हैं टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि ये सबसे पहले कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन के बाद क्या करता है, फिर डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ये यूडीपी जो है ये कनेक्शन लेस है, ये मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा। टीसीपी सबसे पहले क्या करता है, टीसीपी सबसे पहले करता है मतलब रिक्वेस्ट भेजता है। टीसीपी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं। जब ये अवेलेबल हो तो ये रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ आप मेरे साथ कनेक्शन बनाए। ठीक है, तो कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है, जितना भी डेटा होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। एंड में फिर उस कनेक्शन को क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। जो टीसीपी है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और जो यूडीपी है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है वो है रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल सर्विसेज। अच्छा, इसमें जो रिलायबल सर्विसेज है, इसमें रिलायबल में क्या होता है, रिलायबल हैज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। जिसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हो उसको कहते हैं रिलायबल। फ्लो कंट्रोल के मतलब जब ये सेंडर कुछ चीजें इधर सेंड करता है, अगर ये इस पे लोड बढ़ जाता है तो ये इसको एक्नॉलेज करता है कि आप इतनी ज्यादा स्पीड से ना भेजें, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्पीड से रिसीव नहीं कर सकता। या अगर इस पे ये कुछ मतलब स्लो स्पीड से भेज रहा हो तो ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा कि मतलब आप कुछ ज्यादा स्पीड से भेजें, मैं उससे ज्यादा स्पीड पे रिसीव कर सकता हूं। तो इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। एक और है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है, जब ये यहाँ से डेटा भेजता है तो यहाँ पर उसको डेटा को चेक किया जाता है, अगर इसमें कोई एरर हो तो उसको रिकवर किया जाता है। अगर उससे भी रिकवर नहीं हो रहा तो ये इसको कहता है कि उस पैकेट को वापस भेजो, तो इसको कहता है एरर कंट्रोल। तो अगर ये फैसिलिटीज हो जिसमें, तो उसको रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर फ्लो कंट्रोल हो और एरर कंट्रोल जिस मैकेनिज्म में हो तो उसको रिलायबल सर्विस कहते हैं। तो टीसीपी हमारे पास है एक रिलायबल सर्विस, और यूडीपी में ना फ्लो कंट्रोल है ना एरर कंट्रोल है, सिर्फ एरर कंट्रोल करने की चेकसम है। वो देखता है कि एरर आकर हुआ है कि नहीं। अगर आकर हुआ है तो उस पैकेट को सिंपली या साइलेंटली डिस्कार्ड करता है। तो जो हमारा यूडीपी है ये कनेक्शन लेस भी है और अनरिलायबल भी है। जो टीसीपी है ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और ये रिलायबल प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, तो ये दो बातें थी जो स्लाइड्स में नहीं दिखाई गई, तो वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको टीसीपी को। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यूडीपी कहाँ यूज होता है। यूडीपी यूज होता है सुटेबल फॉर प्रोसेस दैट रिक्वायर सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पांस। जब हम सिंपल डेटा सेंड करना होता है या सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पांस होता है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं यूडीपी को। अगर हमने बल्क डेटा ट्रांसफर करना हो, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वहां पर यूडीपी को हम यूज कर सकते हैं। हम ट्रिवियल एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे हम यूज कर सकते हैं यूडीपी को। अगर हम मल्टीकास्टिंग करते हैं, मल्टीकास्टिंग मतलब एक मैसेज को मल्टीपल यूजर्स को भेजते हैं, तो वहां पर यूडीपी सूटेबल है। मैनेजमेंट में या एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पे यूडीपी यूज होता है। और राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी या बीजीपी, ये हम नेक्स्ट उसमें प्रोटोकॉल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आरआईपी को हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर यूडीपी यूज होता है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि मतलब यूडीपी अच्छा है टीसीपी बुरा है, या टीसीपी अच्छा है यूडीपी बुरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई जगहों पे हमें यूडीपी चाहिए होता है और कहीं पे हम टीसीपी चाहिए होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको वीडियो को भी देखेंगे और साथ में इसको बुक में भी पढ़ेंगे। ये ना करें कि मतलब जब भी मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूं तो एक वीडियो की व्यूज जो है वो 30 होते हैं, लेकिन जब मैं उसका वॉच टाइम देखता हूं तो उसका वॉच टाइम होता है 1 आवर या 2 आवर्स।
तो मतलब 1 आवर वॉच टाइम का मतलब क्या हुआ कि हर बंदे 30 बंदों ने वीडियो ओपन की है, 2 मिनट देखी है और फिर क्लोज की है। तो इसको वीडियो वॉच करना नहीं कहते, इसको मतलब अपने आप को धोखा देना कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।